Good morning, students. Welcome to your English online lecture. Students, how are you all? Hope you all are fine. So, students, from today we are going to start with our subject English. All of you have passed and promoted from standard first. Now, this academic year you are in standard second. So students, as you all know, the situation due to the pandemic, we could not start our face-to-face school. So students, we are conducting the online class. So students, from today we are going to learn subject English. So students, welcome in standard second. Myself, Miss Pooja, I am going to teach you the subject English of standard second. So students, I hope that all of you know me well, as in standard first myself only have taught you the subject English. Yes or no? Yes. So in the standard second also I am going to teach you the subject English. So students, all of you just remove your English Bal Bharti textbook. So let us begin with our subject English. Students, this is the image of your English Bal Bharti textbook of standard 2. Okay? So this book you all need to purchase from outside from the shop. This is your English Bal Bharti textbook. I am repeating again. This book you all are going to purchase from outside shop. बच्चों, आपको इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड सेकेंड के लिए बाहर से खरीदनी होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारे इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक से हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे. तो सभी बच्चे इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक और साथ ही में आपको आपके हाथों में एक पेंसिल रखनी है. ओके, सभी बच्चे अपने टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और साथ ही में पेंसिल कैरी करेंगे. ओके, ऑल द स्टूडेंट्स जस्ट ओपन योर इंग्लिश बाल भारती टेक्स्ट बुक एंड कैरी अ पेंसिल विथ यू. Okay students, so this is the inside the book. This is the index page of your textbook. Okay, so let us discuss the syllabus of your subject English before starting the subject. Okay, so students, here you can see inside the book. Okay, so this syllabus, this portion is divided into 4 units. Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आपका जो सिलेबस है इंग्लिश का वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है यूनिट वाइज. यहाँ पर 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4. इसी 4 यूनिट पर आपकी कंबाइन बुक 4 बुक्स आपको स्कूल से नवजीवन 4 कंबाइन बुक के आपको सेट्स मिले हैं. येस और नो स्टूडेंट्स? येस. जिन बच्चों ने कंबाइन बुक स्कूल से ख़रीदी है उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि जैसे हम 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं, इसी 4 यूनिट के ऊपर हमारी कंबाइन बुक में दिया गया पोर्शन है. तो हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 1. आवर फर्स्ट पोएम 1.1 ब्रिज. व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर पोएम? पोएम नंबर 1.1 ब्रिज. Okay students, so
just remove your page number 1 of your Bal Bharati textbook, Unit 1, poem number 1.1, Bridge. So students, all of you have removed your page number 1 of your textbook. Okay, so page number 1, Unit 1, poem number 1.1, Bridge. The name of the poem that today we are going to study is Bridge. This poem is written by Christina Rossetti. Okay, Christina Rossetti is the name of the poet. Before starting the poem, let me show you the picture of bridge and let me tell you the meaning of bridge. बच्चों, हमारी पोएम का नाम है ब्रिज. ब्रिज पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रिज का पिक्चर बताऊंगी और ब्रिज का मतलब समझाऊंगी ताकि ये पोएम पढ़ने से पहले आपको ब्रिज का मतलब अच्छी तरीके से पता चले. ओके स्टूडेंट्स? ओके, यूनिट 1, पोएम नंबर 1, ब्रिज. BRIDGE, ब्रिज. हमारी पोएम का नाम है ब्रिज. आवर पोएम्स नेम इज ब्रिज. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द ब्रिज स्टूडेंट्स. यस, ब्रिज. So, have you all seen the bridge anytime? Yes, most of the time you have been seen the bridge. Yes or no? Yes. Sometimes there are bridges where train goes. Sometimes there are bridges where vehicles pass. And sometimes there are bridges from crossing the one path to another path. And in this picture, as you can see, the down river is floating and the bridge is built on the top to go from one place to another, from one end to another. Okay? तो बच्चों, ये जो ब्रिज है इसे हिंदी में कहते हैं पुल. ब्रिज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुल. बच्चों, ये ब्रिज हमें सहायता करता है एक एंड से, एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने को ब्रिज हमारी मदद करता है. ओके बच्चों, तो इसे हिंदी में कहते हैं पुल. आप देख सकते हो, बहुत बार आपने पिक्चर में देखा होगा कि नीचे से देखो नदी है, पानी बह रहा है, तो हम एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए हम किसकी सहायता से जा पाते हैं? ब्रिज की सहायता से, जिसे कहते हैं पुल. आपने यहाँ पर पिक्चर में देखा होगा, टेलीविज़न में, टीवी में देखा होगा, ब्रिज पे से गाड़ियाँ भी जाती है, ट्रेन भी जाती है. आप कई बार आपने देखा होगा. तो ये ब्रिज कई अलग अलग प्रकार से आपको दिखता है. ओके, तो हमारी पोएम का नाम है ब्रिज. इस पोएम में, ब्रिज पोएम में जो हमारी पोएट है क्रिस्टीना रॉस्टी, इन्होंने इस पोएम को लिखा है. तो पोएट है हमारी क्रिस्टीना रॉस्टी. इन्होंने ब्रिज पोएम में ब्रिज के बारे में एक सुंदर वर्णन किया है. स्टूडेंट्स, क्रिस्टीना रॉस्सेटी, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब्ड द पोएम ब्रिज very beautifully. She has described the poem bridge about the nature, how is the bridge, what all things, trees, nature, earth, rainbow, many things she has described in this poem bridge. So let us study the poem bridge. तो बच्चों, आपको ब्रिज का मतलब समझ आया होगा. मैं आशा करती हूँ कि ब्रिज यानी पुल. आप सभी बच्चों को ब्रिज की तस्वीर से ये अंदाज़ लग गया होगा कि ब्रिज हम पुल को कहते हैं और ब्रिज किस तरीके से दिखता है. ओके, तो अब हम हमारी पोएम स्टार्ट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ पोएम. 1.1 Poem Bridge.
लिसन एंड रिसाइट द पोएम विथ एक्शंस। लिसन यानी सुनो, रिसाइट यानी आपको मेरे साथ ही पोएम रिपीट करनी है। मैं जैसे आपको पोएम पढ़ाऊंगी वैसे आप उस पोएम को रिपीट करोगे, साथ ही में एक्शंस, विथ एक्शंस। अब बच्चों, इस ऑनलाइन लेक्चर में फेस टू फेस लेक्चर होता तो हम ज़रूर इस पोएम को एक्शन के थ्रू एंजॉय कर पाते, बट स्टूडेंट्स हम ऑनलाइन लेक्चर्स में ये थोड़ा सा आपके लिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करनी होगी। ब्रिज पोएम आपको एक्शन के साथ घर पर रिपीट करना होगा। मैं आपको पोएम समझाऊंगी, उसी तरीके से आप घर पर इसका एक्शंस कर सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Okay, so this was the poem. Now I am going to explain you the meaning of this poem. So let us see the first stanza of the poem. बच्चों, अब मैं आपको इस पोएम का हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगी, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। सो बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स यानी नाव, नाव कहाँ चलती है? रिवर्स, रिवर यानी नदी। बोट बच्चों हल्की होती है, तो बोट कहाँ चलती है? रिवर्स में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि बोट सेल ऑन द रिवर्स। आप इस पिक्चर में देख सकते हो बोट, तो बोट कहाँ चलती है? रिवर में, रिवर यानी नदी। ओके, सेल यानी तैरना, बोट सेल ऑन द रिवर्स। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन। And ships sail on the seas. Ship, अब बच्चों शिप यानी जहाज, हिंदी में शिप को क्या कहते हैं? जहाज। अब जहाज आप देख सकते हो पिक्चर में, शिप बहुत बड़ी होती है, तो शिप कहाँ चलती है? समंदर में। ओके, एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, शिप कहाँ चलती है? सीज में, समंदर में। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है कि बोट कहाँ चलती है? नदी में, और शिप कहाँ चलती है? सी में। बोट चलती है रिवर में, शिप चलती है सी में। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दीज। अब यहाँ पर बच्चों कहा गया है क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, सेल यानी तैरना। ओके, तो क्लाउड्स, बादल कहाँ चलते हैं? आसमान में, स्काई यानी आसमान। आप देखते हो, कितने बार आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, तो आप देख सकते हो कि स्काई भी क्या करते हैं? चलते हैं। ओके, क्लाउड्स जो है क्या करते हैं? सेल करते हैं। कहाँ पर? स्काई में, आसमान में। आप देख सकते हो बादल धीरे धीरे मूव होते हैं। आर प्रिटियर दैन दीज। अब ये THESE, दीज, ये दीज वर्ड क्यों कहा गया है? यहाँ पे पोएम में बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, बोट के बारे में कहा गया है, शिप के बारे में और क्लाउड्स के बारे में। ये बोट और शिप्स दोनों से बहुत ही खूबसूरत बादल दिखते हैं जब वो आसमान में
यहाँ से वहाँ तैरते हैं, सेल होते हैं। आर प्रिटियर देन दिस, प्रिटियर का मतलब है खूबसूरत, दिखने में बहुत सुंदर। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रिटियर देन दिस। सो स्टूडेंट्स, द पोएट इज टेलिंग द क्लाउड्स दैट आर सेलिंग across the sky are more beautiful and more prettier than the boats and the ships. Okay, now let us see the next. So students, here our first stanza is completed. Boats sail on the rivers. बच्चों, हमारा पहला स्टैंजा जो पहली 4 लाइन थी ये मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो इसे अच्छी तरीके से हम वापस से एक बार रिपीट करेंगे। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। ओके, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ बोट. यस, सेलिंग ऑन द रिवर्स. एंड शिप्स सेल ऑन द सीज. वेयर इज द शिप सेलिंग? ऑन द सी. But clouds that sail across the sky are prettier than these. The clouds are sailing across the sky. They are more beautiful and prettier. Okay? Now let us see the next stanza. There are bridges on the rivers as pretty as you please. Okay, so here you can see the next line. There are bridges on the rivers as pretty as you please. बच्चों, मैं आपको पिक्चर इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप इसका मतलब समझ सको. ओके, आपको टेक्स्ट बुक में पिक्चर ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, सिर्फ एक रेनबो का पिक्चर है. इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको पोएम मैंने और भी आसान तरीका बनाया है इसे समझने के लिए. यहाँ पे पिक्चर से आपको जल्दी समझ में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, बाय शोइंग द पिक्चर यू विल गेट मोर आइडिया एंड नॉलेज. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स. अब जो रिवर है, जो नदी है, उसके ऊपर क्या बना है? ब्रिज. एज प्रिटी एज यू प्लीज़, वो भी दिखने में बहुत ही सुंदर है और खूबसूरत है. ओके, तो इस सेंटेंस में बताया गया है कि रिवर जो नदी है उसके ऊपर ब्रिज बना है और वो भी दिखने में बहुत ही सुंदर है. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज. ओके, द नेक्स्ट लाइन. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड overtops the trees. But the bow that bridges heaven and overtops the trees. अब बच्चों यहाँ पे BOW बो, बो यानी रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष. वो जो आप स्काई में देखते हो रेनबो, उसी को यहाँ पर बो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे BOW बो कहा गया है. बताया गया है इस पोएम में, पोएट ने, जो हमारी पोएट है, उन्होंने बताया है कि बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, जो बो है वो स्वर्ग सा सुंदर है, जो ब्रिज की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है. एंड ओवर टॉप द ट्रीज, ओवर टॉप द ट्रीज आप देख सकते हो, झाड़ पेड़ पौधे जो है वो भी, ट्रीज जो है वो भी रेनबो ने क्या किया है, उसे कवर कर लिया है. उसकी सुंदरता बताई गई है यहाँ पे. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, यानी जो बो है हमारा रेनबो, वो ब्रिज को हेवन यानी स्वर्ग सा सुंदर बना रहा है. ओके, एंड ओवर टॉप द ट्रीज, आप इस पिक्चर में देख सकते हो ओवर टॉप द ट्रीज. ओवर टॉप का मतलब है झाड़ से, पेड़ पौधों से, जो पेड़ है, झाड़ है, उससे क्या हुआ है, बो को की सुंदरता और भी बढ़ गई है. हेवन यानी स्वर्ग. ओके, नाउ द लास्ट स्टैंजा. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रिटियर
far than these. Let us see the last two lines. And builds a road from earth to sky are far prettier than these. अब कहा गया है कि builds a road, जो एक रास्ता बना है from earth to sky, पृथ्वी से आसमान तक जो रास्ता बना है, are far prettier than these, वो ये सभी चीज़ों से बहुत ही सुंदर है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट लाइन में बताया गया है इस पोएम ब्रिज में. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जो रास्ता रोड जो बना है पृथ्वी से लेके आसमान तक, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई आर फार प्रिटियर देन दीज. ओके, सो नाउ लेट अस सी द पोएम and recite the poem once again. Okay students, I hope that all of you have understood the meaning of the poem that I have explained you in Hindi by showing you the pictures. Okay, now it is time to recite the poem. Okay, so here I am going to recite the poem. All of you will repeat the poem along with me. बच्चों, अब मैं इस पोएम को रिसाइट करूँगी, आपको सुनाऊँगी. आपको मेरे साथ ही इस वीडियो को देखते हुए पोएम को मेरे साथ रिपीट करना है, ताकि आपको इस पोएम बाय हार्ट हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? सो इट्स टाइम टू रिसाइट. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. The poet of the poem is Christina Rossetti. Okay, Christina Rossetti is the poet of the poem Bridge. Okay, now you are going to by heart this poem. You are going to repeat this poem at your home. Okay, now turn the page, come to page number 2 of your textbook. So here you can see page number 2 I have just opened. So students, just open your page number 2 of your textbook. Okay, question number A, write down the things that have following colors. Okay, now all of you carry a pencil for writing down the things that have this color. Okay, so now here I am going to say you the things which belong to the color, the name of the color, and the color is given. Now you have to write the things that you can see with the same color. Okay, yes, so students, are you all ready? Okay, बच्चों, यहाँ पे हमें रेनबो के 7 कलर्स बताए गए हैं. कितने कलर्स बताए हैं? 7 कलर्स. फर्स्ट कलर है वॉयलेट. अब इस क्वेश्चन में हमें वॉयलेट कलर की कौन कौन सी चीज़ें देखने मिलती है, उसका हमें नेम लिखना है. ओके, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको लिखकर बताया है. वॉयलेट कलर का कौन सी चीज़ दिखती है? ग्रेप्स. यस, तो सभी बच्चे फर्स्ट बॉक्स में वॉयलेट के बाजू में लिखेंगे ग्रेप्स. सो स्टूडेंट्स, राइट the spelling of grapes. GRAPES.
P-E-S, grapes. And what can you see in violet color? Yes, brinjal. The color of the brinjal vegetable, all of you know brinjal? Yes, what is the color? Violet. Very good. So write the spelling of brinjal. B-R-I-N-J-A-L, brinjal. Okay, yes. Second is indigo. Indigo color. Okay, this color is indigo. सेकेंड कलर का नाम है इंडिगो. अब इस कलर का बच्चों क्या दिखाई देता है? इंडिगो कलर का इंक. जो पेन की इंक होती है वो भी इंडिगो कलर की होती है. ब्लूबेरी, ब्लूबेरी एक फ्रूट आता है, वो भी इंडिगो कलर का होता है. ओके, तो आपको लिखना है इंडिगो. सो द थिंग्स from indigo color is blueberry. Write the spelling B-L-U-E, blue, B-E-R-R-Y, berry, blueberry. And ink, I-N-K, ink. Okay, third color is blue color. Now this color all of you know, blue color, sky blue color. Yes or no? Yes. So what is the thing that you can name from blue color? बच्चों ब्लू कलर से कौन कौन सी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो? स्काई. वेरी गुड. स्काई का कलर होता है ब्लू. राइट द स्पेलिंग ऑफ स्काई, S-K-Y, स्काई. एंड ब्लू वेल. ब्लू वेल इज ऑल्सो देयर. वेल फिश होती है बच्चों, वो भी कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की. B-L-U-E, ब्लू, W-H-A-L-E, वेल, ब्लू वेल. ओके, नेक्स्ट कलर इज ग्रीन. Now green color, can you name some things from green color? बच्चों ग्रीन कलर से आप मुझे कोई थिंग्स के नाम बता सकते हो? वेरी गुड. ट्री एंड ग्रास. ट्री, T-R-E-E, ट्री. तो आपको ग्रीन में लिखना है ट्री, T-R-E-E, ट्री. G-R-A-S-S, ग्रास. झाड़ होता है, ट्री होती है, कौन से कलर की होती है? ग्रीन. ग्रास यानी घास कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर. वेरी गुड. नेक्स्ट कलर इज येलो. Y-E-L-L-O-W, येलो कलर. येलो कलर से कौन सी चीज़ें आपको देखने मिलती है? व्हाट थिंग्स कैन यू सी फ्रॉम द कलर येलो? कैन यू नेम द थिंग्स? येस, वेरी गुड. मैंगो एंड सन. राइट द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, M-A-N-G-O, मैंगो, S-U-N, सन. Next color is orange. Okay, what can you see from orange color? Orange fruit is orange color. And carrot, vegetable carrot, all of you eat students? Yes. So write the spelling of orange and carrot. Orange, O-R-A-N-G-E, orange. Carrot, C-A-R-R-O-T, carrot. Red. Now what thing can you see from red color? Apple is in color red. And tomato, yes, A-P-P-L-E, apple, T-O-M-A-T-O, tomato. Okay, now here this question is completed. Now let us see some new words from the poem. Look and say. Okay, here are some words that you have to practice at your home. R-I-V-E-R, river. S-K-Y, sky. S-E-A-C, C-L-O-U-D-S, clouds. B-R-I-D-G-E-S, bridges. Heaven, H-E-A-V-E-N, heaven. Next, across, A-C-R-O-S-S, across. Earth, E-A-R-T-H, earth. Prettier, P-R-E-T-T-I-E-R, prettier. Ships, S-H-I-P-S, ships. Bow, B-O-W, bow. Overtops, O-V-E-R-T-O-P-S, overtops. So students, here your page number 1, the poem bridge is completed, and page number 2 also we have done the question number A in the textbook. Now what is the homework for you all?
You all have to learn this poem by heart. This poem bridge. I am going to ask you some question in the next English online lecture. Also, you have to learn the names of the color that are in the rainbow. There are 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These 7 colors we have studied today. So these 7 colors you are going to name the colors of the rainbow, and also you are going to learn this poem. Okay students, I hope that you all have understood the poem 1.1 bridge. Thank you students for watching today's online lecture. Stay home, stay safe and stay connected for the next English online lecture. Have a nice day.